Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of DPS and Inter College. This is science lecture number 5, chapter number 10 for class 6. I am Kamran Gill, SS Chemistry at Divisional Public School, Sahiwal. At the end of this lesson, you will be able to define principal focus of concave mirror, describe how image is formed by concave mirror, define principal focus of the convex mirror, describe how image is formed by convex mirror. Now we recall our previous knowledge. In previous lecture, we studied about curved mirror. Curved mirror are of two types, concave mirror and convex mirror. A curved mirror whose inner curved surface is reflecting is called a concave mirror. It is like the inside of the bowl of a spoon. Similarly, convex mirror, a curved mirror whose outer curved surface is reflecting is called a convex mirror. It is like the outside of the bowl of a spoon. Now we will discuss terms related to curved surface. These are important terms which will help us to understand the diagrams related to image formation in concave and convex mirror. Like a curved mirror is part of a sphere or curve. The center of the curve is called as center of curvature and is denoted by C. The center of the mirror is called the pole and is denoted by P. The line joining the C to P is called the principal axis. अगर ये जो डायग्राम जो यहाँ पर दी गई है आप इस पे फोकस करते हैं तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें अज्यूम करें तो ये हमें किसी स्फीयर का या जैसा कि हमें नज़र आ रहा है किसी सर्कल का एक टुकड़ा लगता है, एक हिस्सा लगता है जिसको हम मिरर का नाम यहाँ पर दे रहे हैं और इसका जो सेंटर है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मिरर का जो सेंटर है इसको हम पोल का नाम देंगे और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो फासला होगा उसको हम रेडियस का नाम देते हैं, जैसा कि हम किसी सर्कल के रेडियस को उसका रेडियस बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और मेन लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन को हमने जहन में रखना है ताकि जब हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में या उनकी रे डायग्राम को डिस्कस करें तो तब हमारे जहन में ये बात रहे। फर्स्ट रूल इज द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस always strike on concave mirror, always pass through focus after reflection. The rays striking at pole reflect back with same angle as incident ray make with principal axis. Principal focus of concave mirror. When light rays strike a concave mirror parallel to its principal axis, after reflection, they pass through a common point in front of mirror.
This common point is called the principal focus. It is denoted by F. A concave mirror has an original principal focus F. That is why it can form real image on screen. बेटे अगर आप लोग इस डायग्राम पर फोकस करें तो यहाँ पर जो रे हमें नज़र आ रही है, इंसिडेंट रे जिसे हम कह सकते हैं, ये रेड कलर की जो रे है ये पैरेलल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल रे है, इसको हम इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं। अगर आप गौर करें तो प्रिंसिपल एक्सिस और इस रे के दरमियान फासला कांस्टेंट है, ये कम या ज़्यादा नहीं हो रहा। इसी तरह से बॉटम पे भी यहाँ पर एक रे है, जब ये कनकेव मिरर की सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्लेक्ट होती हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट पर कंबाइन होती हैं और इसको हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं, और ये आमतौर पर प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। इसकी कंडीशन यही है कि रेज जो हैं अगर पैरेलल आएंगी तब ही ये प्रिंसिपल फोकस पर आकर कंबाइन होंगी। When the object is beyond the principal focus in concave mirror, if the object is beyond the principal focus, the image formed is real and upside down. अब हम फिर से रूल 1 को रिकॉल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट से हमने अज्यूम किया है कि दो रेज मूव कर रही हैं। एक रे पैरेलल रे है और दूसरी रे पैरेलल रे नहीं है। दोनों ही इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो रे पैरेलल है वो स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, और जो रे इंक्लाइंड है, ज़रा टेढ़ी है, पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो प्रिंसिपल फोकस से नहीं गुजर रही। अलबत्ता दोनों रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट पर कंबाइन हो रही हैं, और जहाँ पर ये रेज कंबाइन होती हैं वहाँ पर इमेज बनता है, और ये इमेज जो है इन्वर्टेड होता है, हमें उल्टा नज़र आता है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। दूसरा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी near to the concave mirror, the image forms behind the mirror. It is virtual, upright and bigger in size. अब दूसरे केस में अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते जाएं, मूव इस कदर करवाते जाएं कि ये बिल्कुल कनकेव मिरर के करीब आ जाता है। अब यहाँ पर फिर से दो रेज प्रोड्यूस हुई हैं, एक पैरेलल है और दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। जो रे पैरेलल रे है वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, और जो पैरेलल नहीं है वो प्रिंसिपल फोकस से भी नहीं गुजर रही। अगर हम इनको ड्रा करते हैं या एज इट इज़ इनको मूव करवाते जाते हैं तो दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद कभी मैच नहीं होती। अलबत्ता अगर हम इनको इनके ओरिजिन की तरफ मूव करवाते हैं तो इस तरह से ये दोनों रेज एक कॉमन पॉइंट पर कंबाइन होती हुई हमें नज़र आती हैं, और इस पॉइंट पर इमेज बनता है, और ये वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये है कि वो इमेज कनकेव मिरर के पिछली साइड पे बनेगा, इसके बिहाइंड बनेगा, हालांकि इसकी पिछली तरफ कुछ भी नहीं होता। जैसे हम प्लेन मिरर को देखते हैं तो हम उसमें हमें अपना इमेज नज़र आता है, और वो यूँ लगता है कि जैसे मिरर की बैक साइड पर कोई खड़ा हुआ हो या हमारा जो इमेज होता है, हालांकि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। इमेज जस्ट इमेज की फॉर्मेशन होती है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर allows spreads light rays. It always spread light rays. When light rays parallel to principal axis strike a convex mirror after reflection, they spread in such a way
that they appear to come from a point behind the mirror. This common point is called principal focus of convex mirror. Again we will consider the ray diagram. अगर यहाँ पर हम गौर करते हैं तो तमाम की तमाम रेज यहाँ पर पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डिफरेंट एंगल्स पर स्प्रेड हो रही हैं। जब ये स्प्रेड हो रही हैं तो अगेन ये कभी भी मैच नहीं होंगी, कभी भी ये कंबाइन नहीं होंगी। अलबत्ता अगर हम इनके ओरिजिन से या इनके ओरिजिन की तरफ मिलाते हैं तो फिर ये एक कॉमन पॉइंट की तरफ आकर मिल जाती हैं, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। तो ये कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। A convex mirror always produces a virtual, upright and smaller image of the object at any distance in front of it. The image is located behind the mirror. यहाँ पर अगर हम गौर करें फिर से एक पैरेलल रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, यानी उसका ओरिजिन प्रिंसिपल फोकस में है। और जो इंक्लाइंड है, ज़रा टेढ़ी रे है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद स्प्रेड हुई और जब हमने उसको भी ड्रा किया उसके ओरिजिन की तरफ तो वो प्रिंसिपल फोकस से नहीं गुजर रही। तो जहाँ पर दोनों रेज का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर जो है ये इमेज बनेगा और ये इमेज स्मॉलर इन साइज होगा। हम इसको देखकर यानी ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो इमेज बना है वो नॉर्मल साइज से स्मॉलर है। वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज वही इमेज है जो हमें बिहाइंड द मिरर नज़र आता है और हम वो रियल नहीं होता, उसको हम उसको चेक नहीं कर सकते। तो इस तरह से जस्ट हम उसको देख सकते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट मिरर के सामने से हटता है तो वर्चुअल इमेज भी साथ गायब हो जाता है। रिकैप्चुलेशन है। concave mirror, image with a concave mirror, it can form real and virtual image, upright and bigger image। अगर हम इससे यानी दोनों इमेज जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, इससे रियल इमेज भी हमें हासिल होता है और इससे हमें वर्चुअल इमेज भी हासिल होता है। रियल इमेज हमें तब हासिल होगा जब हम प्रिंसिपल फोकस से दूर होंगे और वर्चुअल इमेज हमें तब मिलेगा जब हम इसके बिल्कुल करीब आ जाएंगे, इतना करीब के प्रिंसिपल फोकस से भी जब करीब आ जाएंगे तो तब हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से कन्वेक्स मिरर, इमेज विद द कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, अपराइट एंड स्मॉलर इमेज। तो कन्वेक्स मिरर जो है इससे जो इमेज बनता है वो सबसे पहली बात स्मॉलर इमेज का होता है और वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है और फिर वर्चुअल होता है यानी बिहाइंड द मिरर होता है। अब आपके लिए असाइनमेंट है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। आप लोग बेटे सॉल्व करेंगे और उसके बाद ग्रुप्स में अपने टीचर्स को इनका आंसर भेजेंगे।